हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मीन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द डायरेक्टिव of principle. The directive principle state policy are in form of instructions and guidelines to their government at the center as well as the state. These principles are known as the staples. They are fundamental in a governance of the countries. The idea of directive principles of the state policy has been taken from to the Irish republics. They were incorporated in our constitution in order to provide economical justice and to avoid the concentration of the wealth in hand of the few people. Therefore, no government can afford to ignore them. They are in fact the directive to be a future government to be incorporate them in the decision and policy to the is formulated by them. The next point here is the classification of the directive principle. What do you mean there is the classification of the directive principle? The directive principle of state policy has been to the grouped into the four category. These are the economical and social principle, the Gandhian principle and principle of the policy relating to the international peace of security and is the miscellaneous. Their first here the economical and social principle. There is the state shall be in the behavior of achieve social and economical welfare of the people by providing a quarters mean of livelihood for both man and woman, and the recognizing the economical system in way to the avoid a concentration of wealth in a few hand, and the securing the equal to the plate of equal work for both man and woman, and securing to the suitable employment and the healthy working condition for a man, woman and children, and guarding their children is against the explorations and the moral degradations, and making effective a provision for the securing their right to a work, education and public assistance in a case of unemployment, old age and sickness and disablement, and making a provision for the securing just a hamons and condition of work and from a maternity or leave, and taking step of is secure for the participation of worker in their management of undertaking, etc. And next is a promoting to education and economic interest of working section of the people, especially the SC and ST. And next year, the securing for all the workers reasonable leisure and the culture opportunities. And the next year, making effort to the rise the standard of living and public health, and providing to earlier the childhood and care and education to all children until they are complete the age of 60 years. There is the most important here. And next here, the Gandhian principle. There contain a principle based on the ideal is advocated by the Mahatma Gandhi. These principles are flowing. There is a four is organize the village panchayat. To organize the village panchayat is the first point. To promote the cottage industry in the rural area. To prohibit intoxicating of drink and drugs that are injuries to health, and to preserve the improve their breeds of the cattle and is a prohibit and the slaughter of the cow and the calves of the other mulch and the draft animals. And the next is the directive principle of state policy related to the international peace and security. India should be render active as a cooperation for the world peace of security, and for that is state shall be endeavors to. The first is to promote to international peace and security, and maintaining just and honorable relation between the nations. And poster is a respect for the international law and treaties is a obligations. And the next is a encourage a settlement of international debt by mature agreement. The next here is the miscellaneous. The directive principle categories called upon to the state to secure for all the Indian uniform civil code, and to protect the historical is a momentous, and to shape the environment from pollution and protect wildlife,
to make a arrangement to the distribution of free legal justice through suitable regulations। दोस्तों ये जो टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए है, चाहे वो बीए हो, चाहे 11वीं हो, +2 हो, चाहे कोई भी बोर्ड के हो। कहते हैं राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का एग्जाम में आना हमेशा बना ही रहता है, चाहे वो बड़े क्लास में हो चाहे छोटे क्लास में हो, हर क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। कहते हैं राज्य नीति निर्देश सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, आखिर क्या मतलब होता है इसका। कहते हैं राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत केंद्रीय एवं राज्य स्तर की सरकारों को दिए गए निर्देश होता है। यद्यपि ये सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, ये देश के प्रशासन में मूल्य भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी अगर देखा जाए तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि नीति निर्देश सिद्धांत का विचार आया कहाँ से, तो ये आयरलैंड के संविधान से आया है, ये आपको याद रखना है। कहते हैं यूपीएससी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कहते हैं ना, सिलेबस अगर ढंग से आप समझ लेते हो ना तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे यूपीएससी एग्जाम बच्चे तैयार करते हो या एसएससी के एग्जाम करते हो या कोई भी एग्जाम के लिए हो, कहते हैं अगर बच्चों को टॉपिक समझ है तो वो सभी क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। कहते हैं आर्थिक न्याय की स्थापना एवं कुछ लोगों के हाथों में धन के संचलन रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया है, इसलिए कोई सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। दरअसल ये निर्देश भावी सरकार को इस बात को ध्यान में रखकर दिए गए थे कि विभिन्न निर्णय नीति निर्धारण में इसके समावेश हो। यानी अगर बने नीति निर्धारण बने तो इसका जो है इसमें समावेश होना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। नीति निर्देश सिद्धांत के जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नीति निर्देश सिद्धांत के वर्गीकरण। देखिए कहते हैं अगर हम इसको वर्गीकरण के रूप में देखें तो ये जो होंगे आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के रूप में होगा, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत होगा और जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित सिद्धांत के रूप होगा। और इसमें जो होगा चौथा पॉइंट, इसमें विविध सिद्धांतों के रूप में हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा तो यही आता है आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के रूप में इसका क्या योग्यता है। कहते हैं लोगों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य जो है निम्नलिखित प्रयास सदैव करते हैं। पहला तो यही बात आ जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना इसके अंतर्गत आता है। कुछ हाथों में संपत्ति का जो है संकेंद्रीकरण रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था का जो है पुनर्गठन भी किया जाता है। सामान्य कार्य के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को सामान्य जो है पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यानी हमारा ये संविधान बताता है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सामान्य काम के लिए सामान्य जो है पारिश्रमिक मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये गलत है। स्त्री पुरुष और बच्चों के लिए योग्य रोजगार एवं कार्य का जो है स्वच्छ वातावरण तैयार करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों को शोषण को और नैतिक अधोगति को बचाना, यानी बच्चों को शोषण नहीं होना चाहिए। आज हमारे देश में बच्चों के साथ बहुत ही शोषण हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात है रोजगार एवं शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी एवं असमर्थता की स्थिति में सरकारी सहायता के जो है कारगर उपाय करना, यानी कारगर उपाय करना अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। कार्य का जो है न्याय उचित एवं मानवीय वातावरण तैयार करना एवं प्रसूति सेवा का व्यवस्था भी किया गया है। यानी प्रसूति होती है तो जो औरतों को है काफ़ी महीनों के लिए छुट्टी मिल जाती है, जो कि हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद देखा जाए तो कामगारों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शिक्षा प्रबंधन एवं उनके आर्थिक हितों का बढ़ावा देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके पश्चात आता है सभी कामगारों के लिए उचित अवकाश एवं संस्कृति मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। कहते हैं जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना भी यही इंपॉर्टेंट बात रहता है। 6 साल तक के सभी बच्चों को जो है बाल्यकाल की सुविधा एवं शिक्षा की व्यवस्था करना अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है। तो ये सारी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब देखते हैं हमारा अगला जो इसके पॉइंट है क्या है। अगला पॉइंट जो है गांधीवादी सिद्धांत। देखिए गांधीवादी सिद्धांत जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा कि गांधी जी ने अपना विचारधारा जो है नैतिक निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत दिया था। तो कहते हैं कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के आदेशों के आधार पर बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही जरूरी थी। कहते हैं गाँव में पंचायतों का गठन करना गांधी जी का सबसे पहला जो माना गया था। उन्होंने ऐसे ही सपना देखा था। गांव में कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना उनकी सबसे इम्पोर्टेंट एम्बिशन में से था।
नशीले पदार्थ और शराब आदि पर प्रतिबंध लगाना जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बहुत ही ज़रूरी इन्होंने बात बताई थी। लेकिन कहते हैं आज महात्मा गांधी के कदमों पे कोई भी नहीं चल रहा है। ठीक है, इवन आपने देखा भी होगा कि कोरोना वायरस में भी कहते हैं कोई चीज़ नहीं खोला गया, कोई दुकान नहीं खोला गया, लेकिन सरकार ने सबसे पहले क्या खोली, तो कहते हैं शराब की दुकान ही खोली। अब देखिए पहले तो हम ये कहते हैं कि गांधी जी के हम आदर्शों पर चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, गांधी जी के आदर्शों को हम धरा का धरा ही छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के नेताओं की कि हम गांधीवादी बात करते हैं, लेकिन गांधी के तो कोई भी शब्दों का हम उच्चारण ही नहीं करते। कहते हैं स्वच्छ भारत तो हम अभियान चला दिए, लेकिन आए दिन देखोगे तो रोडों पे जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, क्या ये स्वस्थ जो है स्वच्छता का ये निशानी होता है किसी देश का? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो कहते हैं गांधी जी यही विचारधारा से थे कि नशीले पदार्थ शराब आदि जो है प्रतिबंध लगाना जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक भी होता है और देश के लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधारना एवं उनके वध पर प्रतिबंध लगाना। देखिए ये बात भी गांधी जी को आज लोगों ने खंडन कर दिया है। कहते हैं गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं को नस्लों को सुधारना, उनको वध पर प्रतिबंध लगाना। आज तो देखोगे गाय जो होते हैं और भैंस होते हैं ऐसे ही रोडों पर आपको मिल जाते हैं दौड़ते हुए चलते हुए, और आए दिन इनको एक्सीडेंट हो जाते हैं, आए दिन ये कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई इस पर ध्यान आजकल नहीं दिया जाता है। कहते हैं जो हमारे गांधी जी ने देखा था सपना, उसके विपरीत जो है हमारा देश बनता चला जा रहा है। तो कहते हैं कई मानने में उनका जो है मन बहुत काफ़ी हताश भी होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष विधि नीति निर्देश सिद्धांत। कहते हैं विश्व शांति एवं सुरक्षा की दिशा में सहयोग का वातावरण तैयार करने के लिए भारत निम्नलिखित उपाय भी करेगा। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्र के बीच जो है न्याय उचित एवं सम्मानजनक संबंध स्थापित भी करना ये दायित्व रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि से उत्पन्न दायित्व का सम्मान करना ये भी विविध नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद का जो है पारंपरिक समझौते के द्वारा हल ढूंढना ये भी जो है इसके अंतर्गत ही आता है। उसके पश्चात आता है विविध नीति निर्देश सिद्धांत। देखिए सभी भारतीयों के लिए सामान्य आहार संहिता बनाए जाए, यानी सिविल बनाया जाए, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण भी किया जाए, पर्यावरण को प्रदूषित रहित बनाना एवं वन्य जीवन का संरक्षण किया जाना चाहिए। कहते हैं हमारे कानून में बहुत अच्छी बातें लिखी गई है, मैं भी इस बात को जो है मानता हूँ और समझता हूँ, लेकिन आज के समय में इसके विपरीत होते हैं। हम पर्यावरण को दूषित करते चले जा रहे हैं और वन जीवन के लिए संरक्षण की तो दूर की बात है, हम तो आए दिन जो है शिकार करते हैं, न्यायालय में केस जाती है और केस जो है 50 साल तक चलती ही रहती है। तो यही तो हमारे देश की विडंबना है। उपयुक्त विधायन के द्वारा जो है निःशुल्क कानून सहायता की व्यवस्था भी की जाए। पर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। देयर इज 3 टॉपिक्स हियर, द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एंड स्टेटस ऑफ वुमेन. Literacy is a big hindrance in the achievement of the goal of the social, economic justice and welfare state. There is a universalization of education. There is the most important. The percentage of literate of people at the time of independence was only 40%. Our government realized the importance of education and laid stress on the spread of the literacies among the masses. Efforts has been made by the government to raise this a level, but is a large section of our population is still illiterate. The foremost effort which is acquired in this field is the spread of the elementary education and its universalization. Due to increasing number of drop out at the primary stage, the number of illiterate of between 15 to 30 years of age has constantly increased. According to National Policy of Education 1986, the government has launched National Literacy Mission and the is the operation of Blackboard. Their Blackboard operation is the most important for the spread of the mass literacy at the primary stage. For those who were deprived of the benefit of education in their childhood, there is the government and many voluntary agencies are making a special effort to educate them by opening night of school and the adult literacy center. Many distance education programs through the correspondence course. Distance education and open learning has been started in different states.
The National Institute of Open Schooling is our Sir Open University has been set of the 10 to the goal of universalization of education. The directive principle providing to free and compulsory education for children up to the age of 14 years has been to included through the 86th Amendment Act 2002 in their list of fundamental rights under Article 21. Thoughts as a much has been to the achieve, but still there is a long way to go to the accomplish. This is the objective of welfare state. The next year, child labor. You have already read that one of the directive principles provide a opportunity and facility to children to develop in a healthy manner. You have also read about the fundamental right against the is the explanations of child. There is children unemployment of children below their age of 14 years in a mines and industries, which is a houses if there is a health and is a promoted. And the spirit of this is a provision their desire result has not been reached in a most of their case. The parent attitude not a conducive to be eliminations of child labor. Therefore, there are children and to do some sort of the work to learn of money of the contributor to family income. The poverty and social stigma are contained or containing on the path of is the eradication of this problem. And apart from the lack of will, all efforts by government at the various level would be as a prove to the factors as the useless and the willingness and the awareness to the get rid of the social challenge is come from within. Dr. Abdul Kalam as a dream of development India 2020 can be achieved only when the children who are the future of the country are scared and the protected from to begin to exploit it. The children should not be deprived of their right to enjoy the childhood and the right of education. The next year is status of women. Indian society is basically is the male dominated society in which the father has been to the head of the family and a mother is a position has been to the is subordinated to him. The position of a woman in there such as a system is naturally weak. The woman has been to suffering a great deal on the account of curial social custom and religious is a practice like a pradha and dowry etc. Pradha and dowry is the most important. Pradha is a practice in the religious. The woman and the intergenius part of count of the 495.7 millions and the representative of 48.3% of country as a total population as per 2001 seems. And essentially there is a rising to the status of education of human has already has been stressed in our constitution through the fundamental right and the various directive principle of state policy. And they has been to the provided with their right to on adequate means of livelihood and equal play with that of man for their work. Women workers has also been provided for the health care of mandatory of relief. Even in the fundamental duties, stress has been the leader on the duty of every citizen of India to the reverence and practice is a derogatory to be dignity of women. The many law of judicials is a decision has been restored the dignity of women. To protect there is a right measuring has been to taken to give them share in the family property. For there is a emancipation from the cruelly practice like a bride bearing of dowry. The bride is a burning for a dowry wife and the wife beating as a sati etc. The law has been to the inculcated is a prohibitions of female infanticide and fructicides and discrimination against girl child and the child marriage are some of other measures there will help the improving the status of women. To empower the woman, the reservation of the one-third of seat through their 73 to 74 article amounted to the Act of 1991 and 1992 for them has been made to the panchayat and municipalities. There is a similar proposal for a reservation of seat from them and the parliamentary and in the state legislatures.
दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है यही कहता है कि नीति निर्देश सिद्धांत यानी शिक्षा की सार्वभौमिकता, बाल मजदूरी और महिला की सतर। देखिए ये तीनों जो है नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत आता है, चाहे वो शिक्षा की सार्वभौमिकता हो, बाल मजदूरी हो या महिलाओं की सतर हो। कहते हैं ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कहते हैं सामाजिक आर्थिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति में अशिक्षा सबसे बड़ी बाधक के रूप में खड़ी हो गई है। कहते हैं अगर हम अच्छे कल्याणकारी राज्य की कल्पना करें, आर्थिक समाज और अच्छे समाज की विकसित की हम बात करें, तो इसके लिए जो है शिक्षित समाज का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं शिक्षित समाज नहीं होगा तो लोग जो है फ्री के लालच दे दे के जो है देश को बर्बाद करने में अग्रसर रहेंगे, और हम भी जो होंगे ऐसे ही वोट भी देते रहेंगे और लोगों को प्रोत्साहित भी करते रहेंगे। तो कहते हैं लोग अपनी भलाई समझना जरूरी है, तो इसके लिए एजुकेशन भी जरूरी है। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ क्लास पास करते रहें। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप एक समझदार नागरिक बनो, क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी बात लालच की है और कौन सी देश के विरुद्ध है, तो ये समझना आपका परम अधिकार बनता है। और उस पर एनालाइज करना कि क्या ये बात बताई गई सही है, उस पर आप सोचिए, विचार कीजिए, फिर अपना निर्णय लीजिए। यही पढ़े लिखे का सबसे बड़ा समझदारी का निशान होता है। और जो समझदार नहीं होते वो दूसरे के बातों पे बहुत ही आसानी से बहक जाते हैं और लालच में आ जाते हैं और गलत कर जाते हैं। मैं ये भी कहता हूँ हमेशा कि आपको जो है अपनी विवेक से सदैव कार्य करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक यही है कि शिक्षा की सार्वभौमिकता। कहते हैं पहले आपने पढ़ा है कि नीति निर्देश सिद्धांत राज्य यह निर्देश देते हैं कि संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए जो है दबाव डाला जाए, क्योंकि बच्चे एजुकेटेड होंगे तभी देश के भविष्य जो है आगे बढ़ेगा। भारत स्वतंत्रता के समय भारत की केवल 14% आबादी शिक्षित थी। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि सिर्फ 14% ही भारतीय शिक्षित थे। तभी तो कहते हैं जो पार्टीशन हुई और जो यहाँ पर दंगा फसाद हुआ, इस सब में कहीं कहीं हद तक शिक्षा का भी गिरता हुआ सतर ही था, क्योंकि व्यक्ति जो थे समझदार नहीं थे और ये आपस में ही दूसरे के बहकावे में आ गए थे। हमारी सरकार ने शिक्षा को महत्व को समझा और लोगों का तक शिक्षा पहुँचाने पर जोर भी दिया गया, परंतु अभी भी हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित है। हमारा सर्वप्रथम प्रत्यंत प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाए जाने पर है, और प्राथमिक स्तर पर स्कूल जो है छोड़ने वाली संख्या बढ़ते रहने के कारण 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में अनपढ़ों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। देखिए दोस्तों, आज के समय कहते हैं ना, शिक्षा व्यक्ति कैसे ग्रहण करना पसंद करेगा। कहते हैं अगर घर में अगर आप खाने वाले हो, माता पिता भाई बहन है, तो कहते हैं व्यक्ति अगर 8वीं 9वीं पढ़ता नहीं है कि उनको जो है घर में जो दबाव सी महसूस होने लग जाता है। कारण क्या है? महंगाई। अब देखिए, शिक्षा आप ग्रहण नहीं भी करोगे फिर भी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर सकती हो। कहते हैं पेट भरता है ना तभी शिक्षा भी अच्छा लगता है, जब पेट में अन्न नहीं रहेगा तो शिक्षा भी आपको बेकार चला जाएगा। तो सरकार को कहते हैं ये तो उन्होंने प्रावधान कर दिया कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इवन कि बच्चों को मिड मील के तहत भोजन भी दोपहर का मिलता है, लेकिन उन्होंने तो दोपहर का खाना दे दिया है, और सुबह शाम खाना कौन देगा? माता पिता। लेकिन माता पिता अगर कमाने जाते हैं तो उनका तनख्वाह ही उतना नहीं होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी पर तो है नहीं। सरकारी नौकरी पर तो कहते हैं बरसात किया जाता है पैसों को, न जाने कितने जो है शेड्यूल यहाँ पर लगा दी गई और कितने तरह के वेतन बना चुके होंगे। तो लेकिन प्राइवेट में तो ऐसा नहीं होता है ना। वहाँ पर क्या होता है, आपको तो किया हुआ मजदूरी भी देने को तैयार नहीं होते ये बड़े बड़े ठेकेदार लोग सब, तो उनका पेट कैसे भरेगा? व्यक्ति 5 दिन से काम कर रखा होता है लेकिन फिर भी उनको पैसा नहीं मिलता है मजदूरी। और वो पुलिस स्टेशन पे अगर कंप्लेंट भी करते हैं तो कहते हैं वो बंदा ही वहाँ से भाग गया होता है। तो आप समझिए कि उनका पेट कैसे भरेगा। तभी माता पिता जो होते हैं इनको जो है रोजगार पे लगा देते हैं, कहीं काम धंधे पे लगा देते हैं। तो ये कहते हैं हमारा जब तक सिस्टम कहते नहीं सुधरेगा ना, तब तक कहते हैं हमारा देश प्रगति नहीं होगा, सदैव प्रगतिशील ही रहेगा। क्योंकि कुछ लोग जो है ये नहीं चाहते कि भारत देश जो है विकसित बन जाए, क्योंकि उनका मकसद ये है कि अनपढ़ लोगों को मैन्युफैक्चर करना और अपना जो है कुर्सी को बचाए रखना। तो ये कोई आम जनता नहीं कर रही है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। कि देखिए दोस्तों, आपको भी मत पता होगा कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है महंगाई। अगर आज के समय आप देख लोगे ना तो एक किताब भी खरीदना आपके लिए सर दर्द से कम नहीं बनेगा।
मैंने बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो किताब खरीदने के लिए भी आनाकानी करते हैं, क्योंकि इतनी महंगी है। सरकार ने बेशकली जो है 8वीं क्लास तक बच्चों को किताब भी फ्री दे दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस बात को जो है 2-4 वर्ड नहीं कहता हूँ। तो क्या सरकार की यही मंशा है कि बच्चे 8वीं तक ही पढ़े? क्या 8वीं तक पढ़ने, आपको क्या लगता है कि 8वीं तक बच्चे को पढ़ा देने से क्या वो बहुत शिक्षित हो जाते हैं? कहते हैं जब वोट देने का अधिकार 18 साल है, जब वो मतलब सोच विचार सकते हैं, तो 8वीं तक क्या वो पढ़ के बहुत समझदार बन जाते हैं, बहुत एक्टिव बन जाते हैं। अब ये भी आप कहोगे कि माता पिता नहीं है। अरे माता पिता तो है, मैं कहा, लेकिन मैंने कहा ना, आज महंगाई ने उनको कमर तोड़ दिया है। आज सोचते हैं कि बच्चों को मैं किताब खरीदूंगा, इससे अच्छा है कि उनको भोजन दे दूं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, सरकार को गंभीर से सोचने की आवश्यकता है। उसके पश्चात देखा जाए तो 1986 की जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता योजना एवं ऑपरेशन जो है ब्लैक बोर्ड जैसे जो है अभियान शुरू किया, ताकि साधारण लोगों तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचा जा सके। देखिए, ब्लैक बोर्ड जो भी थी मिशन बहुत अच्छी थी, ठीक है। वो जो है बचपन से शिक्षा से वंचित रह गए, उन्हें शिक्षित करने के लिए सरकार तथा कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने विशेष प्रयत्न से रात्रि पाठशाला और व्याक शिक्षा केंद्र भी खोले गए। कहते हैं गांव में ये जब ये मिशन चली थी तो धड़ल्ले से व्यक्ति पढ़ भी रहे थे, लेकिन अभी देखोगे तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। यहाँ कोई व्यक्ति, कोई जो है बुजुर्ग पढ़ना नहीं चाहता है, और ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं ना, ये सब कमजोरी ही तो है जिसकी वजह से ये जो होता है ठंडा पड़ जाता है। कोई चीज़ अगर आप देखोगे, जब स्वच्छता अभियान शुरू की गई थी तो मंत्री लोग हर जगह गली गली जा जा के लोगों में प्रचार करते थे, और इवन कि 2 मिनट के लिए झाड़ू पकड़ते तो फोटो खिंचवाते जरूर थे। तो उस समय स्वच्छता अभियान हर जगह चला था, लेकिन आप देखोगे कहीं स्वच्छता नहीं है। कहते हैं जब कई क्षेत्रों में जो है लिफाफा बंद करवाई गई, जब जानवरों के पेट से न जाने कितने लिफाफे के टुकड़े मिले, तो सरकार बहुत चिंतित हुई और इसमें बैन लगा दिया। कहते हैं 2 महीने तो लोगों को पन्नी नज़र तक भी नहीं आई, लेकिन कहते 2 महीने के बाद पन्नी तो हर क्षेत्र में मिलने लग गई। बीच बीच में सरकार ने कोशिश भी किया 1-2 दिन के लिए कि लिफाफा बैन है, और जब भी एक छोटे से गरीब के पास अगर लिफाफा भी मिल जाता था तो वो 500 के पत्ता ऐसे ही काट देते थे। तो आप समझिए ये कैसी रूल रेगुलेशन बनाई गई है जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। कुछ बनाए तो रूल जाते हैं, लेकिन उस पर जो है अमल नहीं हो पाता है, बहुत अधूरे तरीके से अमल होता है। तभी मैं कहता हूँ ना, कोई भी काम अधूरा ना छोड़ो। अधूरा काम सदैव खतरनाक होती है और उससे किसी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जैसे आप भी अगर इसको वीडियो को आधा देख के जो है लीव कर जाते हो, आगे के नहीं देखते हो, तो आपका भी जो ज्ञान अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। इससे अच्छा आप न वीडियो देखते तो ही अच्छा था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। अधूरा शिक्षा भी बच्चों के लिए खतरनाक ही सिद्ध होता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी आपके लिए। तो यही बात यहाँ पर बताया गया कि शिक्षा की व्यापक का उद्देश्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था तथा कई मुक्त विद्यालय स्थापित किए गए। 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए 2002 में 6वीं सेवा संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे धारा 21A के अंतर्गत नीति निर्देश सिद्धांत के स्थान पर मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। उसके पश्चात जो है बाल मजदूरी। देखिए, कहते हैं नीति निर्देश सिद्धांत के अनुसार बच्चों को स्वास्थ्य रूप से विकसित होने के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। बच्चों को शोषण के विरुद्ध जो है मौलिक अधिकार के बारे में आपने पढ़ा है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के जो है रोजगार में नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। लेकिन कहते हैं प्रतिबंध सिर्फ प्रतिबंधित थी, हर जगह बच्चे कार्य जरूर कर रहे थे। इस प्रावधानों के बावजूद जो है वांछनीय परिणाम नहीं मिल पाया। अधिकांश मामलों में बाल मजदूरी को समाप्त करने की दिशा में माँ बाप की दृष्टिकोण ठीक नहीं है। वे अपने बच्चों को कोई भी काम करके पैसा कमाना तो परिवार के आय में योगदान करने के लिए विवश करते हैं। देखिए, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि माता पिता बच्चों को काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए विवश करते हैं, परिवार के आय में योगदान करने के लिए विवश करते हैं। मैं बहुत से गरीब बंदों से मिला हूँ, वो यही बात कहते हैं कि भाई हमारे पेट भरने के लिए पैसे नहीं, तो बच्चों को मैं स्कूल क्यों भेजूँ, कैसे भेजूँ? तो क्यों, मैंने पूछा क्यों है भाई ऐसा, तो वो साफ शब्दों में यही बात बोलते हैं कि महंगाई तो कमर तोड़ चुकी है व्यक्तियों की, आम गरीबों की। तो कहते हैं महंगाई ने इतनी दुर्दशा खराब कर दिया है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
इवन कि अगर आप भी बाजार चले जाओ, अगर 100 रुपया लेके जाओ तो आपका थैला क्या, आपके एक दो ही सामान आएंगे। तो कहते हैं बच्चों को पालना कितना मुश्किल हो गया है। तो ये सब बातें जो है उनके माइंड में ज़रूर रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर देखोगे तो सरकारी मिशनरी जो है कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी जो है हमें देखने को मिलता है, बाल मजदूरी भी देखने को हमें मिलता है। और आय के वजह से नहीं जो है परिवार में माता पिता जो है विवश हो चुके हैं। इच्छा शक्ति कमी के अतिरिक्त निर्धनता और सामाजिक कलंक तथा समस्याओं के निराकार में बाधक भी है। जब तक इस सामाजिक चुनौती को समाप्त करने के लिए जागरूकता और इच्छा शक्ति अंदर पैदा नहीं होती है, सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों में किए गए प्रयास निरर्थक साबित ही होंगे। इसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के जो है 2020 तक सपना तभी साकार हो सकती है अगर जब देश के भविष्य बच्चे सुरक्षित एवं शोषण मुक्त हो। बच्चों को अपने बचपन के अंदर ही शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये कथन जो था हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के था, जिन्होंने ये देखा था कि 2020 तक जो है ये सपना जरूर साकार होगी, लेकिन देखा जाए तो उनका सपना अधूरा ही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है महिला की स्थिति। देखिए, कहते हैं भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें पिता परिवार का मुखिया होता है और माँ की स्थिति उससे गौण होती है। ऐसी स्थिति में महिला की स्थिति स्वाभाविक रूप से कमजोर ही हो जाती है। कहते हैं कठोर सामाजिक प्रथाएं एवं धार्मिक नीति जैसे पर्दा एवं दहेज के कारण भी महिलाओं को काफ़ी हद तक जो है भुगतना ही पड़ता है। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल महिलाओं की संख्या जो थी कहते हैं 49 करोड़ थी और 57 लाख थी, जो कि कुल जनसंख्या का कहते हैं 48.3% ही थी। हमारे संविधान में महिलाओं की स्थिति में उत्थान एवं शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देश तत्वों द्वारा बल दिया गया। उन्हें आजीविका के साधन तथा पुरुषों की तरह सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का भी अवसर प्राप्त हुआ। महिला कामगारों के स्वास्थ्य सुविधाएं एवं प्रसूति के दौरान अवकाश की सुविधा भी दी गई। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि जो प्रसूति के दौरान जो है इन्होंने काफ़ी जो है अवकाश दिया। ये बहुत भी सरकार के जो है कहते हैं काफ़ी अच्छा जो था नीति थी। कहते हैं मौलिक कर्तव्य भारत के हर नागरिकों को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ कुछ भी करने से रोकता है। विभिन्न अधिनियम एवं न्याय के निर्णय ने महिलाओं की प्रतिष्ठा स्थापित की है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पारिवारिक संपत्ति में उनके हिस्सा देने के उपाय भी किए गए हैं। दहेज के लिए दुल्हनों को जलाया जाना, पत्नियों का प्रताड़न, सती जैसी निष्ठुर प्रथाओं के उन्मूलन के लिए कानून बनाए भी गए हैं। कन्या वध, भ्रूण हत्या, लड़कियों के प्रति भेदभाव, बाल विवाह एवं प्रतिबंधित तो ऐसे उपाय हैं जिससे महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार तो हुई है। महिला सशक्तिकरण के लिए 1992 में संविधान के जो है 73वें और 74 में संशोधन द्वारा पंचायतों और जो है नगर पालिकाओं के महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित भी की गई है। संसद एवं राज्य विधायकों में इसी तरह के जो आरक्षण का प्रस्ताव भी किया गया था। यद्यपि कुछ हासिल भी किया जा चुका है, फिर भी लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना उद्देश्य समाप्त करने के लिए बहुत करना भी बाकी। Our most important topic here are critical analysis of directives principles. The many critics has been to call this is a directive principle of state policy is not be better than a New Year greetings. Even to the rationale of instant things such as a high sounding promise has been to the questioned. It has been to the asserted that the directives are in their form of holy wishes having no legal assertions behind them. The government is not bound to be implement them, and critics is a point out that they are not be formulated keeping their practice accepted this idea in a mind. And therefore all this it can be not be said that this and this principle are absolute of useless. They have their own utility and significance. The directive principles are just like a pole star that is provide direction. Their basic aim into the priesthood as their government to provide a social, economical justice in all the sphere of life, and keeping in the view in the limit material and source at their earliest possible. Many of them has been to implemented every successfully. Actually, no government can be afforded to the ignore this instruction as they are a mirror of the public's opinion and also reflect the basic spirit of the preamble of our constitutions. Some of steps taken in their direction are began listed below. The first year the land reform has been introduced and
Jagidari and Jamidari system has been to the abolished. The next year, there has been to the rapid industrialization and tremendous is increasing in the agriculture production through the Green Revolution. And next year, National Commission for the Welfare of Women has been established. And ceiling has been to the place on land and property to fix them a limit persons as a holding. And there is a previous process of X principle has been is published. And life insurance, general insurance as a most of the bank has been nominalized. And in order to reduce economical disparities, right to the is property has been detected from their chapter on fundamental right. And subsidized public distribution schemes has been launched to help the poor people. The rules require that both men and women are paid equal wage for the equal work. Untouchability has been is abolished. Their necessary effort has been made from is a filament and of the SC, ST and the other backward classes. Third, the 73 and 74 is the amendment of the Constitution is the 91 and 92. Respectively, the Panchayati Raj has been given to the Constitution states with the more power. The 12th point is a small scale village industries and Khadi Gram Udyog has been encouraged to be varying to the prosperity to be a rural area. India has also is been to actively cooperate with the UN to promote to international peace and security. The above step on the part of the center and the state of government indicate that many directive principle of state policy has been implemented to lay down to the fundamental of scale socialist and welfare state. However, still there is a long way to be go achieve all them in a full. There are many hindrances in the non-implementation of directives principle of state policy. There are main reasons are lack of political will on the part of the state and the lack of the awareness and organized action on the part of the people and limited material resource. तो जैसा कि आपको पता ही है कि नीति निर्देश सिद्धांत तो हमने सब कुछ जान लिया है, लेकिन कुछ बातों में इसके आलोचनात्मक व्याख्या भी की जा सकती है। कहते हैं कई बार तो एग्जामिनर के जो है आलोचनात्मक व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण भी बना के एग्जाम में डाला है, तो इसको जो है इग्नोर कर देना सबसे बड़ा मूर्खता होगी। इसलिए जो है आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आलोचनात्मक व्याख्या क्या है नीति निर्देश सिद्धांत की। कहते हैं कई आलोचकों ने राज्य के नीति सिद्धांतों को नव वर्ष की शुभकामनाओं से बेहतर नहीं माना है। दरअसल इन उच्च आदर्श को संविधान में शामिल करने से औचित्य पर भी सवाल उठता है। देखिए बात तो बहुत ज़रूरी है कि हमने संविधान को तो बहुत ऊपर तक बना दिया है और बहुत अच्छी बातें बता दी है, लेकिन क्या इसका औचित्य रहेगा? माना जाता है कि ये निर्देश मात्र शुभकामनाएँ ही है। बात सही है कि ये सिर्फ एक शुभकामनाएँ की तरह ही दिया गया है, लेकिन इसको लागू ढंग से नहीं किया गया है, जिनके पीछे कई कानून मान्यता नहीं है। सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। आलोचकों का मानना है कि इन सिद्धांतों को व्यवहारिक आधार पर नहीं उतारा जा सकता है। इन सब के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सिद्धांत पुण्य जरूपन पेंस जो है अर्थहीन है। इसकी अपनी उपयोगिता और महत्व भी है। नीति निर्देश सिद्धांत जो है ध्रुव तारा की तरह है जो हमें दिशा दिखलाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सीमित साधनों के बावजूद जीवन के हर पहलू में यथाशीघ्र सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। कुछ सिद्धांतों को तो सफलतापूर्वक लागू भी किया गया है। वास्तव में कोई भी सरकार इन निर्देशों को अवहेलना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जनमत का दर्पण है, साथ ही ये संविधान की प्रस्तावना की भी आत्मा है। यानी कहते प्रस्तावना की आत्मा माना गया है। इन्हें लागू करने की दिशा में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले तो यही कदम उठाया गया था कि भूमि सुधार लागू किए गए थे और जमींदार और जमींदारी प्रथा को उन्मूलन किया गया था इसके अनुसार। ठीक है, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ और हम हरित क्रांति द्वारा कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी भी किए। ठीक है, महिलाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी की गई और व्यक्तियों की जो है भूमि संपत्ति की सीमा तय करने के लिए जो हरबंदी लागू भी किया गया। कहते हैं व्यक्ति की संबंधित बहुत से कार्य किए गए। राजवारों के दिए जाने वाले प्रिवी पर्स का जो है उन्मूलन किया गया और जीवन बीमा, साधारण बीमा तथा अधिकांश बैंकों को राष्ट्रीयकरण किए गए। तो ये सब नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत ही हुआ। आर्थिक विषमता कम करने के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया।
उसके पश्चात निर्धनों की सहायता के लिए सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली की माध्यम से सहायता भी दी जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों के सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन के लिए नियम भी बनाए गए हैं। छुआछूत का उन्मूलन भी किया गया है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कारगर प्रयास भी किए गए हैं। कहते हैं 73 और 74वें में संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देते हुए और अधिक सशक्त बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग तथा खादी ग्राम उद्योग को प्रोत्साहित भी किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के को प्रोत्साहन करने के लिए सक्रिय रूप से संयुक्त राज्यों के साथ सहयोग भी कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लिए गए उपरोक्त कदम यह दर्शाते हैं कि भारत में एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी एवं लोक कल्याणकारी राज्य की नींव डालने के लिए कई नीति निर्देश सिद्धांत को लागू किया गया है। ये सच है कि सभी नीति निर्देश सिद्धांत पूर्णतः लागू करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी अभी है। तो निर्देशित सिद्धांत को लागू किए जाने के रास्ते में कई बाधाएं हैं। इनमें से मुख्य हैं राज्यों के में नीति निर्देश इच्छा शक्ति का अभाव, यानी राज्यों में इच्छा शक्ति नहीं रह जाती है। गाँव में जागरूकता एवं संगठन का अभाव और सीमित साधन। दोस्तों ये आलोचना अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें मौलिक कर्तव्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो दूसरे बच्चों को पहुंचाने में भी आपको सहायता करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है जिससे दूसरे बच्चे को भी ये लिंक प्राप्त हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि सर्च करने से त्रिपाण स्टडी सेंटर नहीं आता है। बेशक आप किसी बच्चे को बताइएगा कि मैंने त्रिपाण स्टडी सेंटर से देखा है, वो रिसर्च करेगा तो नहीं आएगा, ठीक है, तो आपको गलत बोल देगा। इससे अच्छा है कि लिंक को आपने क्या करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर कॉपी करके लगा देना है। जिन बच्चों को देखना होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को बताया जा सकता है, ज़बरदस्ती कुछ भी कार्य करवाया नहीं जा सकता। जो चीज़ जहाँ समझ में आता है वही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पर ही समझिए। कहते हैं आपका ज्ञान है, आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि कौन ज्ञान कौन सा ज्ञान आपको सही बताया जा रहा है, सही समझाया जा रहा है, जो आपके फ़ायदे में भी हो और आपके एग्ज़ाम व्यू से भी सही हो।